جلال پور بھٹیا میں بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں، کسانوں کا وابٹ آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس قانون کے تحت کسانوں کو اضافی یونٹ ڈال کر ظلم اور ناانصافی کی گئی۔ صرف شدہ یونٹس کا بل کم اور ٹیکسز 2 گنا ڈال دیے جاتے ہیں۔ پتوکی کے نواحی علاقہ ہنجرائے خرد میں واردات، 4 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 4 لاکھ روپے، 4 تولہ سونا اور جہیز کا سامان لوٹ لیا۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے علاقہ مکین خوف میں مبتلا ہونے لگے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں فقیر والی کے قریب نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کاشت، کپاس اور دیگر فصلیں سیراب آ گئیں۔ لاکھوں روپے کے نقصان کا اندیشہ، کسانوں کا محکمہ انہار کے عملے پر غفلت برتنے کا الزام۔ اور راجن پور میں سیلاب کے باعث متعدد تعلیمی ادارے متاثر، بچوں کو حصول علم سے جوڑنے کے لیے فلاحی تنظیم میدان میں آ گئی۔ خیمہ بستی میں راشن کے ساتھ ساتھ کتابیں، وظیفوں اور اسکول بیگ تقسیم کیے گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لیا میں بھی آٹے کا بحران، غریب 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے۔ آٹے اور گندم کی قیمت میں اضافہ، شہری سراپا احتجاج ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک فیض بھلر کی اس رپورٹ میں۔ دوسرے اضلاع کی طرح ضلع لیا میں بھی آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ غریب 2 وقت کی روٹی سے بھی پریشان۔ ضرورت زندگی اشیاء خود نوش مہنگی ہونے سے غریب عوام پہلے ہی شدید پریشانی کا شکار تھی، تو پھر اچانک ہی رات کی تاریکی میں حکومت کی طرف سے جو آٹے کا 10 کلو گرام کا تھیلا 490 روپے میں سرکار کی طرف سے مل رہا تھا، تو اسی 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بڑھ گئی اور 648 روپے میں اب مل رہا ہے۔ اور سستا آٹا خریدنے کے لیے سارا دن مزدور بیچارہ اپنی مزدوری چھوڑ کر قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہوتا ہے، تو اس کے بعد بڑی مشکل سے آٹا خریدا جاتا ہے، اور خواتین بھی آٹا خریدنے کے لیے سارا دن پوائنٹ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور رہتی ہیں۔ اب مزید غریب عوام کو سستا آٹا خریدنے کے لیے سارا دن جگہ کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جانے لگا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں دکاندار اپنی من مرضی سے آٹے کی فروخت کر رہے ہیں۔ غریب عوام نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا، خدارا ہم پہ ترس کھائے اور آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کر کے غریب عوام کو پریشانی سے نجات دلائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک فیض بھلر، KN نیوز لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی مقامی فلور ملز میں تیار ہونے والا سرکاری آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 980 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ سیلاب متاثرین اور دیگر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سعید رسول متنی کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مہنگائی اپنی بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ شہر اور مضافات میں 60% علاقہ سیلاب سے متاثر ہونے، شہر سے زمینی راستوں کے منقطع ہونے اور فصلیں تباہ ہونے کے باعث ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہے، جبکہ دوسری جانب صوبے بھر کی طرح آٹے کی قیمتوں میں دگنے اضافے سے شہری شدید کوفت کا شکار ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ محمود خان کے احکامات کی روشنی میں سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور کی کاوشوں سے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ فوڈ نے مقامی ملوں سے کوٹا سسٹم کی بنیاد پر سرکاری آٹے کی فروخت شروع کرنے سے شہریوں اور سیلاب متاثرین نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے علی امین خان گنڈاپور اور ضلعی انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے خوشائند قرار دیا۔ السلام علیکم۔ ہم ضلعی انتظامیہ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ دکانداروں کے پاس پہلے ٹرکوں پہ رلنا پڑ رہا تھا،
अभी जो है आटे की क्वालिटी भी अच्छी है, पहले मुगल वाला मिलता था वो अच्छा नहीं था, बाऊ वाला अच्छा है। और वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर के बेहद मशहूर हैं, और इसके बाद कोहिनूर चैनल के बेहद मशहूर हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और बिला तरतीब मिल भी रहा है। ये मैं ज़िला इंतज़ामिया का बहुत मशहूर हूँ, पहले आटा बहुत महंगा था, अब मैंने ले लिया 980 का शुरू किया अली अमीन साहब ने, इनका मैं बहुत मशहूर हूँ। और लोगों का मजीद कहना था कि 980 रुपये 20 किलो आटा शहर की रजिस्टर्ड दुकानों पर फरोख्त होने से एक आम दिहाड़ीदार के घरेलू बजट में कमी आएगी। अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कोटे की तरसील में इजाफ़ा किया जाए और मिल मालिकान को तंबीह की जाए कि आटे की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज़, डेरा इस्माइल। मंगला में समाजी रहनुमा चौधरी खालिद हुसैन की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का बंदोबस्त किया गया। दुआया तकरीब में स्टेशन कमांडर मंगला कैंट उरफान अहमद भाट की बतौर शाह मेहमान खसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं फैसल महमूद की इस रिपोर्ट में। बर्ड मंगला के रहायशी मरूज सियासी समाजी शख्सियत चौधरी खालिद हुसैन की तरफ से सलाम तहसीन के लिए 50 से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए आटा, घी, चीनी, दालें, बिस्कुट, चावल और साफ़ पीने के पानी समेत कपड़ों का बंदोबस्त किया गया। सलाम तहसीन को इमदाद पहुँचाने के लिए बेहतरीन दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। दुआया तकरीब में खुसूसी आमद स्टेशन कमांडर मंगला कैंट इरफान अहमद बांड, कर्नल जफ़र इकबाल AQ, स्टेशन कमांडर मंगला कैंट, CO कंटोनमेंट बोर्ड मैडम सबनीना आगा चौधरी, फोक शहबाज रहनुमा PTI चौधरी वाजिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी शकील अहमद, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मंगला कैंट और मेज़बान चौधरी खालिद हुसैन समेत इलाका भर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी शकील अहमद, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड का कुछ यूँ कहना था। चौधरी शकील अहमद, वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मंगला कैंट, यहाँ चौधरी खालिद साहब के घर में एक सलाब ज़दगान के लिए एक मददी कैंप लगाया सामने, जिसमें खुसूसी तौर पर स्टेशन कमांडर मंगला और CO कंटोनमेंट बोर्ड और चौधरी फोक शहबाज साहब और मस्जिद कमेटी और सारे गांव के जो लोग जितने भी आए थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौका पर कमांडर इरफान अहमद बांड ने सलाम तहसीन को भेजे जाने वाली इमदाद का जायज़ा भी लिया। रहनुमा PTI चौधरी फ़रूख शहबाज का कहना था कि जब भी कोई आजमाइश आई तो अवाम समेत अफवाज पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। सियासी समाजी शख्सियत चौधरी खालिद हुसैन ने अपने ख्यालात का कुछ यूँ इज़हार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहली खेप अपनी 50 ख़ानदान के लिए कोई 15 से 20 आइटम हैं, जिसमें घी, आटा, चीनी, दालें, खुराक के, मेडिसन के, उनका भी अरेंज किया है, और डॉक्टर का भी कि वहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ डॉक्टर कैंप लगाएं और मेडिसन वगैरह भी सारी मुहैया करें जो उधर ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम में आलमी इस्लाम समेत पाकिस्तान और सलाम तहसीन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा नसीराबाद में सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज सर उठाने लगे। सैकड़ों की तादाद में मलेरिया के मरीज अस्पताल में मुंतकिल। मज़ीद जानते हैं असलम बलोच की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद में जहाँ पर सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर करके बेघर कर दिया, वहीं पर अब सैलाब मुतासरीन मलेरिया, डायरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होकर सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली का रुख कर लिया है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि डेरा मुराद जमाली के डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में मलेरिया की कोई भी अद्वियात मौजूद नहीं है। बाज़ार से दवाई अपने पैसों से लेकर इलाज करा रहे हैं। जो है यहाँ के पेशेंट जो है ज़्यादा मलेरिया का है, क्योंकि मलेरिया का यहाँ ऐसा कोई जो है मेडिसन है भी शायद वो नहीं दे रहे हैं, जो कुछ है भी वो कुछ टेबलेट वगैरह ये कुछ दे रहे हैं, इतनी सहूलियात नहीं दे रहे हैं लेबॉर्ट्रियों में। और जो कि मलेरिया के ख़ास करके पेशेंट जो हैं सारे मलेरिया के आते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि ये मलेरिया के पेशेंट को और मलेरिया के जो आवाम जो इस वबा मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको ज़्यादा थोड़ा सा हो। MS डॉक्टर अयाज जमाली का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मलेरिया में मुब्तला मरीज़ अस्पताल आते हैं, जिनका इलाज किया जाता है, और अस्पताल में मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के अद्वियात की कोई कमी नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अयाज जमाली और मैं यहाँ का MS हूँ, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा मुराद जमाली नसीराबाद का। यहाँ पर हमारे पास इन सैलाब और बारिशों के बाद जो चीज़ें हमारे पास सपोर्टेड हुई हमारे हॉस्पिटल के अंदर, वो मोस्टली AWD एक्यूट वाटरी डायरिया, और वो भी माशाल्लाह कोई उसमें सीवियरिटी उसमें कोई एक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर हमारे पास कोई अमवात नहीं हुई, लेकिन वो स्टेबल हो चुके हैं। और दूसरा शुरू में इनिशियल डेज के अंदर हमारे पास स्किन रैशेस के केसेस आते थे, लेकिन अब वो कम हो चुके हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया हमारे पास इस वक्त कम हो चुका है। इस वक्त हमारे पास जो आ रही है वो हाई ग्रेड फीवर, टेम्परेचर, हमने उसके लिए क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ है कि हर पेशेंट का हम लोग मलेरिया का टेस्ट करते हैं
उसके बाद देखते हैं कि अगर उस पेशेंट में मलेरिया पॉजिटिव तो हम उनको एंटी मलेरिया ड्रग्स भी देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन को मच्छरदानियाँ फराहम करने के साथ साथ मच्छरमार स्प्रे शुरू करे ताकि मलेरिया जैसे मूजी इमराज कंट्रोल हो सके। कैमरा टीम के साथ असलम बलोच, कोहिनूर न्यूज़, डेरा मुराद, जमाली। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाबी रेलों के बाद टांक में स्कूलों में दोबारा क्लासेस का मामला, 177 स्कूलों को नुकसान पहुंचा, हज़ारों बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। मज़ीद जानते हैं आदिम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। सैलाबी रेले आते हैं और अपने साथ हज़ारों खुशियाँ बहा कर ले जाते हैं। टूटे फूटे घर, भूख, इफलास इनका मुकद्दर बन जाता है। सैलाब के बाद बीमारियाँ फैल जाती हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया वगैरह। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये लोग टेंटों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़िला टांग के 177 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनमें 156 प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्कूल डैमेज हुए हैं कि उनमें आबादकारी के लिए कोई रकम भी मुख्तस नहीं की गई। स्कूल के कमरे या तो गिर चुके हैं या अनकरीब गिरने वाले हैं। तलबा को इन टूटे फूटे कमरों में बिठाया नहीं जा सकता। जो सैलाब की वजह से कमरे गिर गए और क्रैक हैं, उसके लिए फ़ंड मुख्तस किए जाएं, क्योंकि बच्चे स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर हम अंदर जाएंगे ये कमरे क्रैक हमारे ऊपर गिर जाएंगे। कि स्कूल ना जाने की वजह से उनका टाइम ज़ाया हो रहा है और उसका स्कूल मुतासर हो रहे हैं। बराए मेहरबानी इसके लिए फ़ंड मुख्तस किए जाएँ और इन स्कूलों को फिर से आबाद किया जाए कि बच्चे इनमें पढ़ सकें। बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासर हो रही है। KPK हुकूमत को कब होश आएगा? कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांक। राजनपुर में सैलाब के बाइस तालीम से महरूम होने वाले बच्चों को दोबारा हसूल इल्म से जोड़ने के लिए फलाही तंजीम मैदान में आ गई। खैमा बस्ती में राशन के साथ साथ किताबें, वजीफ़ा और स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर हमजा का कहना था कि खैमों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने का मकसद बच्चों को नफ्सियाती उलझनों से निकालना है। बच्चों ने फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया। शहदाद कोट में सैलाब से मुतासर होने वाले खसूसी अफराद का इमदाद न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना। अली मोहम्मद बरोही, सुधैर शाह मोहम्मद बिन बरोही और दीगर का कहना था कि सैलाब में सबकी दाद रसी की जा रही है, मगर हुकूमती नुमाइंदे गूंगों बहरों की तरफ मुतवज्जो नहीं। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं फाका कशी से बचाने के लिए हमारी भी मदद की जाए। टंडू अलायार में बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। हारी कमेटी चंबड़ के रहनुमाओं की जानिब से बारिश मुतासरीन को इमदाद ना मिलने, घरों से बारिश का पानी ना निकाले जाने पर ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हारी कमेटी चंबड़ के रहनुमा अरबाब उस्तमानी, हादी मंगराड़, महबूब लुंड ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बारिश को ख़त्म हुए 15 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए और ना ही ज़िला इंतज़ामिया समेत तालका चंबड़ की इंतज़ामिया की जानिब से बारिश मुतासरीन की कोई देखभाल की जा रही है। तालका चंबड़ बारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाला तालका है। इसके बावजूद तालके में कोई भी टेंट सिटी कायम नहीं किया गया और ना ही मुतासरीन के लिए राशन फराहम किया जा रहा है और ना ही पीने का साफ पानी और ना ही मच्छरदानियाँ फराहम की गई हैं। मच्छरदानी नथा ॾेई सघनि। हींअर मूं CM साहब जी पढ़ी पे अख़बार में त असां मच्छरदानियूं बि नथा ॾेई सघूं, असां ॿियूं शयूं बि नथा ॾेई सघूं। भला ठीकु आहे, घटि में घटि जीअं इहो मुतालबो बि कयूं था त इहे जेके बेसिक जेके लंघ हुआ पाणी जा, उहे जेके रस्ता हुआ, उन में छो न इहा कहिड़ी नामुमकिनात मां ॻाल्हि आहे, इहा कहिड़ी नामुमकिन शइ आहे त तव्हां उहे लंघ, उहे रस्ता, उहे पुराणा डोरा, उन में तव्हां पाणी निकाल नथा करे सघो। की बेल्ट जो हिसो जेको पंजाब जो हेठियों लोअर पासो आहे, उन खां पोइ सरहद सूबे जो KPK जो सवात ऐं मानसर वारो इलाइक़ो, इहे ॿुधाइनि
तव्हां फौरन इमदाद विराइण शुरू कयो। तव्हां रखियो वेठा हूंदा, तव्हां कहिड़े कम जी कब्र में खणी वेंदो या इमदाद? जेके वसाइल आहिनि उहे पूरे लुटे तव्हां पंहिंजे कब्ज़े में कयो पिया। त जॾहिं तव्हां हीअ आवाम में शऊर ईंदो तॾहिं तव्हां खां हीअ जेके आहिनि तव्हांजा इक़्तिदार फुरींदा। इनका मस्जिद के नज़र के बारिश की निकासी न होने के सबब तालका चंबल में 2 बच्चे भी जाँ बाग हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर आयद होती है। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाए और बंद स्कूलों को फौरी तौर पर बहाल करे ताकि मुल्क के मेमार तालीम के ज़ेवर से रास्ता हो सके। इसके साथ साथ बारिश मुतासरीन को पीने का साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। सरगोदा में पुलिस थाना अर्बन ने कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। चर्स और अफ्यून भी बरामद कर ली गई। SHO सब इंस्पेक्टर चौधरी असर नदीम ने पुलिस पार्टी के हमरा मशकूक गाड़ी से स्मगल होने वाली 15 किलो चर्स और 2.5 किलो अफ्यून बरामद की। 2 मंशियात फरोश मलिक रकीब और मुराद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी भी तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ANF की कराची में कामयाब कार्रवाई। शाहरा फैसल पर वाक़ निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किए गए पार्सल से आइस बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। ने कराची में कामयाब कार्रवाई करके बड़े मिकदार में आइस बरामद कर ली है। शाहरा फैसल पर वाक़ निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक किए गए पार्सल से आइस बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल का मजमूई वजन 49 किलोग्राम है। बरामदशुदा आइस खवातीन और बच्चों के कपड़ों में जज़ब की गई थी। पार्सल चमन के रिहायशी की जानब से बुक करवाया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्ज़िम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। ओखाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमों का हशमत टाउन में छापा। मिर्चों में मिलावट करने वाले मकरू धंधा में मुलविस मुलजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 410 किलो मिलावटी मिर्चें बरामद कर ली गई हैं। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि अवाम को मियारी खुराक की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों के साथ खेलने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। हफ्साने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर दुकानदार को जुर्माना किया गया है। शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग जारी है। जालसाजी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ सिविल डिफेंस की कागजी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में की जाने वाली कार्रवाइयों की हकीकत खुल गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर वाह से मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। मज़ीद जानते हैं सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील आलम की हिदायत पर इंस्पेक्टर नसर कियानी और तौकीर की सरबराही में 10 के करीब गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और सिलेंडर गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेट्रोल एजेंसियों को सील किया, जबकि सिलेंडर गैस वालों का सामान जब्त कर लिया गया। बाद अज़ां टीम के जाते ही दुकानदारों ने सील तोड़कर दुकानें खोल ली। इस हवाले से सिविल डिफेंस के ऑफिसर अकील आलम से रब्ता किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए इस मामले की तहकीकात करने का कहकर जान छुड़वा ली। करप्ट अनासर पर इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की सरपरस्ती करते हैं और कभी कभार कार्रवाई के नाम पर फोटो सेक्शन करके आला अफसरान की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। अवामी हलकों ने DC रावलपिंडी से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन असद के साथ सजाद हैदर, KN न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी कैंट बोर्ड की हदूद में फूड कंट्रोल सेल ने CEO की खसूसी हिदायत पर कार्रवाइयाँ करते हुए इंचार्ज हारून जफर की सरबराही में गैर मियारी निजी बेकरियाँ और कारखाने सील कर दिए। मज़ीद जानते हैं सलमा मलिक की इस रिपोर्ट में। के फूड कंट्रोल सेल के अमले ने कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान गुलजार की खुसूसी हिदायत पर कैंट के इलाके सदर और गर्दो नवा में फूड कंट्रोल सेल के इंचार्ज हारून जफर चौधरी की सरबराही में गैर मियारी सफाई 118C के तहत निजी बेकरी, कारखाना, रेस्टोरेंट, फिश शॉप्स और मुख्तलिफ फूड आउटलेट्स सील किए गए और मौका से खाने पीने के 25 अदद नमूना जात लिए गए, जिनको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा पिशावर रोड, वेस्ट्रीज, टेंच बाटा और मसरियाल रोड
روڈ کے علاقوں میں کیسز کینٹ اسپیشل فوڈ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھیجے گئے، جن کو بعد میں سمن جاری کیے جائیں گے۔ فوڈ کنٹرول سیل کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر کینٹ کے تمام علاقوں میں آپریشن کرتا ہے تاکہ کینٹ کے رہائشیوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا مہیا ہو سکے۔ کیمرہ مین اسد خان کے ساتھ سلمہ ملک، KN نیوز راولپنڈی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی کے سرحدی علاقہ بریار کہنا میں نہر رامرالا راوی لنک کی تباہ کاریوں نے شدت اختیار کر لی۔ کٹاؤ سے نہر پھیلتی ہوئی دریا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ MR لنک نہر نے صدیوں پرانے گاؤں بریار کہنا کے رہائشیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ متاثرین کا سماجی رہنما چودھری اشفاق بریار کی قیادت میں حکومتی بے حسی اور محکمہ انہار کی مجرمانہ غفلت کے خلاف احتجاج، فوری نوٹس لینے اور ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بند بنانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے، بارش اور سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ مسلم لیگ نون حیدرآباد ڈویژن کے صدر خالد رائیں، بدین کے صدر ابراہیم کمبو اور آفتاب تھیبو کا تلہار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ جو شکر گزار آیا پریس کلب تلہار جا سب ساتھیوں دوستو السلام علیکم۔ اج मां हिते हाज़िर थियो आहियां तव्हांजी ख़िदमत में इहा ॿुधाइण जे लाइ त असांजी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हनि जे क़ाइद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहब जी ख़ुसूसी हिदायत ते असां सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेके सैलाब ज़दगान जा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जा असीं दौरा कयूं पिया ऐं उन्हनि जी इमदाद जे लाइ असां सर्वे बि कयूं पिया त कहिड़ा इलाइक़ा वधीक अफेक्ट थियल आहिनि ऐं उन हवाले सां जेके इमदाद ईंदी। मलिक मोहम्मद समीर खान के साहिबजादे पीपल्स पार्टी ज़िला अटक के नायब सदर मलिक उमर खान ऑफ गरीबवाल के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी ज़िलाई सदर पीपल्स पार्टी अशर हयात खान थे। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेज़बान मलिक उमर खान ने खिताब करते हुए कहा कि भुट्टोइज़्म एक नज़रिया है और नज़रिया कभी मरता नहीं है, बल्कि इस पर अमल करते हुए कौमें मंजिलें तलाश किया करती हैं। इस मौके पर रावलपिंडी डिवीज़न के नायब सदर मुख्तार खान, साबिक उम्मीदवार PP4 मलिक हाजी मोहम्मद अख्तर, सरदार सलीम हैदर के साहिबजादे सरदार फैज़ान हैदर, तहसील सदर पिंडी खेब शेख आफ्ताब अहमद एडवोकेट, तहसील सदर फताह जंग सरदार ज़हीर ने खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर सिविल डिफेंस अमले की तरफ से तलबा और दीगर महकमों से वाबस्ता अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी गई। मज़ीद जानते हैं इमरान कादिर की इस रिपोर्ट में। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 72 घंटों के दौरान दरिया सतलुज के बलाई इलाकों में शदीद बारिश की तवक्को है। PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब और रावी के बलाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। दरियाओं से मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में बारिश का इम्कान है। तमाम अजला हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। ज़िला इंतज़ामिया जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए बर वक्त ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल करे। कमिश्नर सरगोदा मरियम खान एक रोज़ा दौरे पर भक्कर पहुँच गईं। मरियम खान ने DC ऑफिस में खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा मोहतरमा मरियम खान ने जिला भक्कर का पहला तफसीली दौरा किया और मॉडल बाजार DHQ के विजिट के साथ साथ DC ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का भी इनेकाद किया, जहां उन्होंने साइलिन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। हम अपनी डिवीजन के बाकी अजला में भी खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं और उसको ये नहीं कर रहे कि एक दफ़ा खुली कचहरी करके वहाँ से दरखास्तें लेके हम छोड़ें, उसे हम जाके डिजिटाइज करते हैं, अपनी डेटाबेस में एंटर करते हैं, उन लोगों के नंबर्स लेते हैं और उनको राब्ते करते हैं। जिस तरह काम
काम जिस तरीके से होने वाला है या उसको कोई कन्फ्यूजन है कि वो गलत जगह दरख्वास्त दे रहा है तो फिर हम उसके मुताबिक उनको गाइड भी करते हैं। बाकी मुझे देख के इंतहाई खुशी हुई है कि खुर्रम शहजाद साहब ने अपने दरवाजे खुले छोड़े में, इसी तरीके से ये सब के लिए मिसाल है कि सबको ये करना चाहिए। जो हमें दरख्वास्तें आई हैं उस पर हम इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो उनसे एक्शन लेंगे और बाकी जो आप लोगों ने मसाइल रेज़ किए हैं ये बड़े जेन्युइन हैं, इसमें जो हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करेंगे और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। कमिश्नर सरगोदा मोहतरमा मरियम खान ने भक्कर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। DHQ में वेल वुमेन क्लिनिक का इफ्तिताह किया और बाद निज़ाम तहसील ऑफिस मनकेरा में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नवाही कस्बा ढिंगाना में देही खवातीन के लिए जारी मददगार सेहत प्रोग्राम का भी जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ तारिक मीद मलिक, कोहिनूर न्यूज़, भक्कर। जलालपुर भटिया में बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। किसानों का वापटा ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि इस कानून के तहत किसानों को इजाफी यूनिट डालकर जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई। बिजली के बिलों में सर्वशुदा यूनिट्स का बिल कम और टैक्सेस 2 गुना डाल दिए जाते हैं। जो बिल हज़ारों रुपए में आता था वो अब लाखों रुपए में आ रहा है। टैक्सेस को जमा किया जाए तो फ़ी यूनिट 2 गुना से भी ऊपर हो जाता है। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस ख़त्म करने का जो वादा किया था उसके चार्जेस डाल दिए जा रहे हैं। जलालपुर भटिया में बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। किसानों का वापटा ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि इस कानून के तहत किसानों को इजाफी यूनिट डालकर जुल्म और नाइंसाफ़ी की गई है। बिजली के बिलों में सर्वशुदा यूनिट्स का बिल कम और टैक्सेस 2 गुना डाल दिए जाते हैं। जो बिल हज़ारों रुपए में आता था वो अब लाखों रुपए में आ रहा है। टैक्सेस को जमा किया जाए तो फ़ी यूनिट 2 गुना से भी ऊपर हो जाता है। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस ख़त्म करने का जो वादा किया था उसके चार्जेस डाल दिए जा रहे हैं। कंदकोट में 5 मुखबियों की बाजियाबी के लिए इंटस हाईवे इंटरपोल के मकाम पर धरना जारी है। वर्सा और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। धरने के शुरका की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अगवा, कत्ल, लूटमार, डकैती की वारदातें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। पुलिस इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस 1 माह के अंदर 40 से ज़ायद शहरी अगवा हो चुके हैं। इस वक्त भी 5 मुखवी अब्दुल्ला गनी, वली मोहम्मद खोसा, ट्रक ड्राइवर नसीर अबरूही और 2 तालिबे इल्म काशिफ सुमरो और इशफाक सुमरो डाकुओं के चुंगल में हैं। लाड़काना के इलाके अल्लाहबाद रोड के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ एयरपोर्ट रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। इस मौके पर अकरम खोकर, अमजद सुमरो, रजब खोकर और दीगर ने कहा कि 5 रोज़ से अल्लाहबाद समेत मुख्तलिफ मोहल्लों की बिजली बंद की गई है, जिसके सबब मच्छरों ने काट काट कर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाई हैं। कई बच्चे और ख़वातीन बिजली ना होने और मच्छरों के डेरे जमाने से मलेरिया में मुब्तला हो चुके हैं। आपको बताएं कि लाड़काना के इलाका अल्लाहबाद रोड के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ एयरपोर्ट रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। इस मौके पर अकरम खोकर, अमजद सुमरो, रजब खोकर और दीगर ने कहा कि 5 रोज़ से अल्लाहबाद समेत मुख्तलिफ मोहल्लों की बिजली बंद की गई है, जिसके सबब मच्छरों ने काट काट कर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाई हैं। कई बच्चे और ख़वातीन बिजली ना होने और मच्छरों के डेरे जमाने से मलेरिया में मुब्तला हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पत्तोकी के नवाही इलाका हंसराय खुर्द चौकी सरसिंह की हदूद में डकैती की वारदात। 4 डाकुओं ने अहले खाना को जरकमाल बनाकर 4 लाख रुपए, 4 तोला सोना और बेटी के लिए बनाया गया जहेज़ का कीमती सामान लूट लिया। बढ़ती हुई वारदातों से इलाका मकीन खौफ में मुब्तला होने लगे हैं। वज़ीर आला और IG से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। वालिदा का कहना था कि बेटी की शादी का जेवर, कीमती सामान और रकम थी जो डाकुओं ने लूट ली है। आपको बताएं कि पत्तोकी के नवाही इलाका हंसराय खुर्द चौकी सरसिंह की हदूद में डकैती की वारदात पेश आई। 4 डाकुओं ने अहले खाना को जरकमाल बनाकर 4 लाख रुपए, 4 तोला सोना और बेटी के लिए बनाया गया जहेज़ का कीमती सामान लूट लिया। बढ़ती हुई वारदातों से इलाका मकीन खौफ में मुब्तला होने लगे हैं। वज़ीर आला और IG से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। वालिदा का कहना था कि बेटी की शादी का जेवर, कीमती सामान और रकम थी जो डाकुओं ने लूट ली है।
उमरकोट में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले सैलाब मुतासरीन के 25,000 रुपये में से मुख्तलिफ सेंटर्स पर बैठे डिवाइसेज होल्डर 2 से 3,000 रुपये की नाजायज़ कटौती करने लगे हैं। सेंटर्स पर खातून को धक्के देकर उनकी तस्लील की जा रही है। इमदादी रकम से नाजायज़ कटौती का अमल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमला और पुलिस के मुबैना अशर अब्बास से जारी है। आपको बताएं कि उमरकोट में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले सैलाब मुतासरीन के 25,000 रुपये में से मुख्तलिफ सेंटर्स पर बैठे डिवाइसेज होल्डर 2 से 3,000 रुपये की नाजायज़ कटौती करने लगे हैं। सेंटर्स पर खातून को धक्के देकर उनकी तस्लील की जा रही है। इमदादी रकम से नाजायज़ कटौती का अमल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमला और पुलिस की मुबैना अशर अब्बास से जारी है। हारूनाबाद के नवाही गांव फकीर वाली के करीब नहर का 6 साल में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से किसानों की सैकड़ों एकड़ पर काश कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। किसानों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि नहर में ज़्यादा पानी छोड़ने के सबब शगाफ पड़ा है। महकमा इनहार के अहलकार जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं करते। हारूनाबाद के नवाही गांव फकीर वाली के करीब नहर 6 साल में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से किसानों की सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल काश्त कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। किसानों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि नहर में ज़्यादा पानी छोड़ने के सबब शगाफ पड़ा है। महकमा इनहार के अहलकार जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजर इरफान महमूद का कहना है कि ज़िम्मेदार बहावलपुर मुहिम कामयाबी से जारी है। शहरी बहावलपुर को साफ रखने के लिए ताउन करें। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मैनेजर इरफान महमूद ने बताया कि ज़िम्मेदार बहावलपुर मुहिम कामयाबी से जारी है, जो कि 1 माह तक जारी रहेगी। इसमें बहावलपुर के शहरियों को कहा जा रहा है कि बहावलपुर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारे साथ ताउन करें, गंद को रोडों पर न डालें, कूड़ेदान में डालें, ताकि बहावलपुर शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ज़िम्मेदार बहावलपुर के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया, जिसके तहत हम जो वेस्ट वायलेटर्स हैं, जो कि गंदगी फैलाने का सबब बनते हैं, जो दुकानदार या जो जिनका बिज़नेस है, जो कि लाखों का बिज़नेस करते हैं लेकिन अपने वेस्ट बिन बाहर नहीं रखते और वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, जिससे लोगों में बीमारियां फैलती हैं। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बनाया है और इस पर बाकायदा हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम इनमें अवेयरनेस दे रहे हैं। पहले हम इन सबको वार्निंग दे रहे हैं कि खुदारा आप अपने घर के बाहर कमरों मतलब अपने बिजनेस दुकानों के बाहर आप क्या रखें, वेस्ट बिन्स रखें। तो ये हमारी 1 महीने की मुहिम है और जो अच्छा कारकर्दगी हमें दिखाएगा, जो भी अच्छे लोग होंगे जो हमारे मुल्क के हमारे शहर की सफाई में अहम किरदार अदा करेंगे, हम उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे और उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। लिहाजा अब तमाम लोगों से, तमाम शहरों से हमारी गुजारिश है कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलके शहर को साफ़ सुथरा रखें और मोहब्बत का पैगाम फैलाएँ और साफ़ सुथरा शहर के अंदर, ताकि हम सबको एक साफ़ सुथरा माहौल हासिल हो सके। लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। शालीमार जोन में बगैर नक्शा प्लाजे का तामीराती काम जारी है। आपको बताएं कि लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। शालीमार जोन में बगैर नक्शा प्लाजे का तामीराती काम जारी है। आपको बताएं कि लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। शालीमार जोन में बगैर नक्शा प्लाजे का तामीराती काम जारी है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात की जाए तो तामीरात का सिलसिला शुरू से ही जारी है, लेकिन शालीमार जोन में जो है बगैर नक्शा जात तामीरात का सिलसिला जारी है, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि जराये का कहना है कि जो अफसरान है वो फीसिस महसूस कर रहे हैं, जबकि जो हुकूमती रेवेन्यू है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का जो है महाना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो हुकूमत के खाते में जाने चाहिए थे पैसे, और जो नक्शाजात अप्रूवल फीस होती है, इसके मद में अफसरान जो है बगैर किसी खौफो खतर के अब देख रहे हैं कि वो इस तरह के काम में मुलविस है। जराये का ये कहना है कि ये शालीमार जोन में जो है नाखुदा चौक के पास अमारात है और उसके अलावा जो है आताबाद में और मुख्तलिफ शालीमार जोन के इलाके हैं जहाँ पे ये तामीराती सिलसिला जारी है, जबकि जिला इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जब इस वाले से हमने कोशिश की कि मौका लिया जाए CMOP का, तो उनका कहना था कि आप हमें बता दें कौन कौन सी अमारात का सिलसिला इस तरह का जहाँ पे तामीर हो रहा है। हालांकि ये उनके नोटिस में होना चाहिए, उनका ये एरिया, और हर जोन में हम देखते हैं कि तामीराती
सिलसिला जब शुरू होता है तो उसके लिए नक्शे की अप्रूवल जरूरी होती है, और जिसके बाद अगर अप्रूवल होगी तो फिर भी कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और शहर भर में इस तरह का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ जोन में जो है तामीराती काम जारी है, लेकिन इसके लिए हम देखते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, जिसके बाद अप्रूवल के बाद जो है ये प्रॉपर बिल्डिंग बनती है। लेकिन बताया ये जा रहा है अफसरान भारी रकम जो है वसूल करते हैं और ये अपने खाते में डाल लेते हैं, जबकि ये करोड़ों रुपए का जो माहाना नुकसान है ये पंजाब रेवेन्यू को हो रहा है। इसलिए हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर जो है मोहम्मद आमिर जान, वो हालांकि काफी नए हैं इस वाले से, उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। जब से वो आए हैं ये तामीरात का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि अगर इस पर काबू पाया जाएगा तो करोड़ों रुपए के नुकसान को पंजाब हुकूमत को बचाया जा सकेगा। और दूसरी जानिब में बात करें तो तजावजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन वो मखसूस इलाकों में किया जा रहा है, जबकि शालीमार जोन में जो तामीराती काम है उसको रोकने के लिए किसी भी अमले ने या फिर किसी भी जिले इंतजामिया के अफसरान ने इधर नजर नहीं डाली। और जराये का ये कहना है कि ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान है ये डेली बेसिस पे माहाना ये होता चला जा रहा है। और इसके लिए जब हमने मौकफ लिया तो इंतजामिया ने ये कहा, CMOP ने हमसे कहा कि आप हमें बता दें कौन कौन सी बिल्डिंग है, जबकि जो बिल्डिंग है वो सबके सामने है, तामीरात हो रही है, लेकिन उनके नक्शा जाता उनकी अप्रूवल नहीं हुई और ना ही कोई उसका सद्देबाब हुआ है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अशरफ, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी अकमल ने म्यूनसिपल कमेटी में सफाई और जहानिया को क्लीन बनाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब के मुशीर नवाबजादा अयाज खान न्यासी थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने भी खसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी खालिद जावेद अराई, बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी, सहाफ़ियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि जहानिया म्यूनसिपल कमेटी के अहलकार गलियों में जाकर अवाम के मसाइल फौरी हल करें। टीम की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अकमल खुद करेंगे। अवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इजाफी मशीनरी और नफरी भी मुहैया कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी अकमल ने म्यूनसिपल कमेटी में सफाई और जहानिया को क्लीन बनाने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब के मुशीर नवाबजादा अयाज खान न्यासी थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने भी खसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी खालिद जावेद अराई, बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी, सहाफ़ियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि जहानिया म्यूनसिपल कमेटी के अहलकार गलियों में जाकर अवाम के मसाइल फौरी हल करें। टीम की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अकमल खुद करेंगे। अवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इजाफी मशीनरी और नफरी भी मुहैया कर दी है। एबटाबाद में ख़वातीन के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। ख़वातीन अपने मसाइल बेहतरीन अंदाज में हल करवा सकेंगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। ज़ारा मीरवेज़ नियाज़ ने DPO एबटाबाद सजाद खान के हमरा वुमेन पुलिस स्टेशन एबटाबाद को फ़ाल कर दिया। इस मौके पर DIG हज़ारा ने DPO सजाद खान के हमरा थाने का दौरा किया और वहां पर तैनात लेडीज़ पुलिस अफसरान से बातचीत की। वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम से ख़वातीन अपने मसाइल बआसानी बता सकेंगी, जहां पर लेडीज़ अमला तैनात किया गया है। DIG हज़ारा मीरवेज़ नियाज़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि IG साहब ने एक खातून ऑफिसर जो हैं उनको पहले तो AIG जेंडर लगाया था, अब इन्वेस्टिगेशन का चार्ज भी दिया है। ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि जब ये सारी कोशिशें हो रही थी तो सजाद खान के साथ मैंने इसी पे बात की और हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस वुमेन पुलिस स्टेशन को दोबारा से फ़ाल बनाएं और जो हमारे एबटाबाद की ख़वातीन हैं उनके लिए हम ये फैसिलिटी दोबारा से एक तरह इसको जैसे कहते हैं ना इसमें दोबारा से ज़िंदगी डाल दें और कोशिश ये करें कि उनको एक UAN नंबर भी हम प्रोवाइड करें ताकि
وہ آسانی سے اس پولیس اسٹیشن کو ایکسیس کر سکیں، اپنے مسائل خواتین کے ساتھ ہی ڈسکس کر سکیں. خواتین کے مسائل کے حل کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن کو فعال کیا گیا. عبید الرحمان سلیمانی، کوہ نور نیوز ٹی وی، ایبٹ آباد. نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کے MS ڈاکٹر محمد مقبول نے بتایا کہ ہسپتال میں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. میڈیسن اور ہر طرح کے ٹیسٹ کی فری سروس فراہم کی جا رہی ہے. پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ. نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال ڈاکٹر محمد مقبول نے بتایا کہ ہسپتال میں ہر طرح کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے. ایمرجنسی بھی 24 گھنٹے کھلی ہے. میڈیسن اور ہر طرح کے ٹیسٹ کی فری سروس فراہم کی جا رہی ہے. جنوری 2022 سے اگست تک MS ڈاکٹر محمد اقبال نے پروگریس رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر مقبول MS صادق عباسی ہاسپٹل بہاولپور رابطے میں ہوں. آپ کے توسط سے میں اپنے ہاسپٹل کی پرفارمنس 1 جنوری سے لے کر آج تک جو ہماری پرفارمنس ہے، ٹوٹل OPD ہمارا 4,24,000، ٹوٹل انڈور پیشنٹ ہمارا 20,000، ایمرجنسی 66,000، 2 لاکھ پیتھالوجی ٹیسٹ 2,27,000، الٹرا ساؤنڈ 22,000 اور انڈور آپریشن جو ہیں تقریباً 4,000 ہیں میجر. ایکس رے ہمارے سی ٹی اسکین 1,285 ہیں ٹوٹل اور ایکس رے 15,074. تو اس میں یہ ہے کہ ہم میڈیسن فریلی اویلیبل ہے. OPD کی بھی ایمرجنسی ہماری 24 آور ہی رن کر رہی ہے. اس میں میڈیسن ایچ اینڈ ایوری تھنگ از فری. اس کے علاوہ ہم نے اپنا ڈینگی وارڈ بھی اچھی طرح ڈیولپ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ ڈینگی کے ہمارے آج تک جو پیشنٹ ٹریٹ ہوئے ہیں 32 ہو گئے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ پیشنٹ ہمارے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہو کے گھر گئے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کے سیریس یا ڈیتھ وغیرہ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ڈینگی HD بھی ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. 30 ٹوٹل ہمارے پاس 30 بیڈ ایلوکیٹ کیے ہیں ڈینگی کے لیے. تو سسپیکٹڈ پیشنٹ تقریباً 432 پیشنٹ ہم نے سسپیکٹ چیک کیے ہیں. ڈینگی کی میڈیسن، ڈینگی کے ٹیسٹ فریلی اویلیبل ہیں. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور. حوصلے بلند ہوں تو انسان ہر مشکل سے ٹکرانے کا عزم رکھتا ہے. جذبہ اور لگن ہو تو کم وسائل بھی آڑے نہیں آتے. صادق عباس سے سہیل ندیم کی رپورٹ دیکھیے. سیف اللہ پہلوان کی روزی روٹی کچرے کے ان ڈھیروں سے جڑی ہوئی ہے. یہ نوجوان کچرا چن کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے. خستہ حال جھونپڑی اور دیگر ٹوٹا پھوٹا سامان اس کے حالات کا پتہ دیتے ہیں. مشکل حالات کے باوجود اس نوجوان کو ریسلنگ کا بہت شوق ہے. سیف اللہ روزانہ اینٹوں اور چارپائی کی مدد سے پریکٹس کرتا ہے. کم وسائل کے باوجود سیف اللہ نے کئی مقابلوں میں حصہ لیا. بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو اکھاڑے میں ہرایا. اپنی محنت سے نیشنل گیمز میں کانسی کے تمغے اور سرٹیفکیٹ اپنے نام کیے. شہر کی سڑکوں پر کچرا اٹھانے والے اس نوجوان کے پاس پہلوانی اور ریسلنگ کا شوق پورے کرنے کے لیے نہ پہلوان جیسی تکڑی خوراکیں، نہ پریکٹس کرنے کے آلات. سیف اللہ ہے اور میں جھوپڑیوں میں رہتا ہوں. گتے کاغذ وغیرہ اٹھا کے اپنا خرچہ چلاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کا خرچہ چلاتا ہوں. تو مجھے ریسلنگ کا بہت شوق ہے اور میں نے دیسی کشتیاں بھی بہت لڑی ہیں اور اس میں نے بہت پہلوانوں کو ہرایا ہے. اور میں نے نیشنل لیول پہ بھی میں کھیلا ہوں. نیشنل گیم میں میں نے برونز میڈل جیتا ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ میری سپورٹ کی جائے اور انشاءاللہ میں باہرلے ملک جا کر پاکستان کا نام روشن کروں. سیف اللہ پہلوان پوترے اسا جھوپڑے رہن والے ہیں، غریب بندے ہیں. اسا گتے کاغذ چون دے روزی روزگار کرنے ہیں. اے جوان دا شوق ہے میں بڑا اچا پہلوان بنا. یا مہربانی تھی ونجے پاکستان نال جڑا اپنا سارے تعاون کرے. سیف اللہ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مقامی جم نے اسے پریکٹس کرنے اور میٹ پر کشتی کرنے کا موقع تو فراہم کر دیا. اگر حکومتی سطح پر سیف اللہ جیسے پہلوان کو سپورٹ کیا جائے تو یہ نوجوان ملک و قوم کا نام روشن کر سکتا ہے. سہیل ندیم، کوہ نور نیوز، صادق آباد. بنو کے نواحی گاؤں ہندی خیل میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. اہل علاقہ نے گاؤں کے لیے میدان دینے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. تفصیلات کے مطابق ضلع بنو کے دور دراز نواحی علاقے ہندی خیل کے نوجوانوں نے اپنی مدتاب کے تحت ایک بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا.
जिसमें 14 बेहतरीन इलाकाई टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल हिंदी खेल स्टार्स और कंबाइंड हिंदी खेल के माबैन खेला गया। हिंदी खेल स्टार ने मुकर्ररा ओवर्स में 85 रन स्कोर किए और कंबाइंड हिंदी खेल ने सख्त जद्दोजहद के बाद आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर मतलूबा हदफ हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद क्राउड में मौजूद थी, जिसमें जवान, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। मैच के बाद नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने शिकवा किया कि मुस्तकिल ग्राउंड न होने की वजह से वो परेशानी का शिकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके के आबादी तकरीबन 25,000 आबादी है और यहाँ खेलने के लिए कोई स्टेडियम, कोई जगह भी नहीं है। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी सी स्टेडियम तैयार किया जाए। यहाँ के नौजवानों के गिले शिकवे हैं ज़िले इंतज़ामिया से, क्योंकि उनकी तरफ से कोई सपोर्ट फराहम नहीं की जा रही है और यहाँ पर मुस्तकिल ग्राउंड नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ ग्राउंड भी बनाया जाए। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, हिंदी खेल, बन्नू। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।